صاحب کا ریاست مدینہ کا جو خواب ہے وہ اس وقت تک اسے تعبیر نہیں ملتی جب تک وہ سیاسی غلامی سے اس پاکستان کو نجات نہ دلائیں۔ نسل در نسل جو غلامی ہے اس کا توق ہم نے عوام کے گلے سے نکالنا ہے، اتارنا ہے، اور اسی سے آپ حقیقی نئے پاکستان کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمیں آج پیرول کے حوالے سے جو ہمارے وی آئی پی قیدی اپنی والدہ محترمہ کے صف پہ شامل ہو رہے ہیں، مائیں سب کی سانجھی ہیں، ہم ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں۔ یہ دکھ کے لمحات ہوتے ہیں، ماں کا کسی بھی اولاد سے بچھڑنا، وہ کسی بھی عمر میں ہو، وہ ایک انتہائی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور والدین کی جس کے سر سے دعائیں اٹھ جائیں، ختم ہو جائیں، وہ اولاد پھر اور زیادہ چیلنجز میں پھنس جاتی ہے، اور دعاؤں کی فیکٹری کا بند ہونا شریف خاندان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ مائیں دعاؤں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اور دعا کی فیکٹری کا بند ہو جانا بھی ان کے لیے ایک نیک شگون نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک راج کماری صاحبہ رات آپ کے سامنے یہ جوتوں کے پٹارے میں سے انہوں نے جو پلندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس میں وہ باری باری کوئی نہ کوئی پلندہ سامنے لاتی ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے، ورگلانے اور ہمدردیاں سمیٹنے کا ذریعہ بناتی ہیں۔ ایک ایسی خاتون جنہوں نے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئی ہوں، اور جنہیں جیل کے اندر بسنے والی، رہنے والی جو قیدی خواتین ہیں، ان جیسی ایک دن کی بھی زندگی انہوں نے قید خانے میں بھی نہیں گزاری، اور ایک دانہ جیل کا نہیں کھایا۔ اپنے گھر سے پارسل پیک ہو کے کھانے والا جو کھانا تھا، آج وہ سوالیہ نشان ہے کہ جاتی عمرہ کے جو ان کے ذاتی کک ہیں وہ بھی ان کے بیانیے کو پھر مسترد کر چکے ہیں، جو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے چوہوں والا کھانا ملتا رہا، تو وہ تو گھر سے آتا تھا۔ تو محترمہ، آپ اپنی انگلیاں اپنے کچن کی طرف اٹھائیں، وہاں کا جو باورچی ہے اس کی طرف انگلی اٹھائیں، کیونکہ آپ کا پارسل کھانا، پیک کھانا، ٹیسٹڈ کھانا آپ کو وہاں ملتا تھا، جیل کا ایک دانہ بھی آپ نے نہیں چکھا۔ تو کاش آپ جیل کا ایک دانہ چکھتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ عام قیدی میں اور آپ میں کیا فرق تھا۔ دوسری چیز جو اہم ترین آج تیسرا اہم ایشو ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں آج سے ہم نے ایک باضابطہ پولیو کمپین کا آغاز کیا ہے، جو نہ صرف 30 نومبر سے فیلڈ میں ہمارے پولیو ہیلتھ ورکرز متحرک نظر آئیں گے، بلکہ گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر ان ہیلتھ ورکرز کی سپورٹ سے بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے، اور یہ ایک صحت مند، تندرست پاکستان کی طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیو فری پنجاب کا جو نعرہ ہے اس کو ہم حقیقت میں بدلیں گے، اور پنجاب کو پولیو سے بھی پاک کریں گے اور آلودہ سیاست سے بھی پاک کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیں کہ پی ڈی ایم کو پشاور کے اندر یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ مریم نواز کا کھانا گھر سے آتا ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ جمعرات کھانا گھر سے آتا تھا، اس کے علاوہ وہ جیل کی کینٹین کا کھانا کھاتے تھے، تو کس کی بات کو سچ مانیں ہم؟ دیکھیں، جو سرٹیفائیڈ اتھینٹک جو انہوں نے لکھ کے ان کی طرف سے ایک اسپیشل ہمارے پاس ان رائٹنگ ڈاکومنٹڈ ایک فائل کے اندر موجود ہے وہ ڈرافٹ، کہ جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، جیل حکام جو ہیں وہ مجھے کھانے میں کوئی بھی چیز ملا کے دے سکتے ہیں، تو لہٰذا میرے کھانے کا بندوبست جو ہے
वो मेरे घर से किया जाए। और जेल अथॉरिटीज़ ने भी इस चीज़ को महसूस करते हुए कि क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस और हाई प्रोफाइल कैदी, तो कोई भी जितना मर्जी अच्छी चीज़ हम देंगे तो कोई भी ऐसा अगर अनफॉर्चुनेट कोई एस्पेक्ट आता है तो उसका वो करेंगी, प्रोपोगेट करेंगी। तो लिहाजा उनकी चॉइस पे ही वो खाना उनको दस्तयाब होता था। वो बाकी कैंटीन शंटीन पे तो हम भी आपको पता है कि जब दिल बहलाने के लिए फिर कोई टूटी फ्रूटी खाने के लिए कैंटीन का रुख कर लेते हैं, रूटीन में वो घर का ही खाया करती थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि पीडीएम का जो जलसा पेशावर के अंदर हुआ और उसमें भी लोगों की तादाद बहुत कम नजर आई, उसके बाद हमने देखा कि मुल्तान के अंदर जलसा होने जा रहा है और मरियम ने ऐलान किया कि वो शरीक होंगी, और तीसरा ये कि 17 को लाहौर, 13 को लाहौर की दिसंबर को भी उन्होंने जलसा रखा है। क्या आप समझती हैं कि इजाजत देंगे? अगर देंगे और अगर नहीं देंगे तो फिर रोकेंगे कैसे? मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सख्त तरीके से हैंडल किया जाए, जो कानून की पासदारी ना करे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मजीद कोई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? बस ठीक है, उन्होंने ठीक है बोलो। मजीद अगर उन्होंने कुछ कहा तो इमरान खान के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमारे जल से रोकने की कोशिश की गई तो राना सनाउल्लाह साहब और मुल्तान में जो कपड़े गए हैं छोड़ देंगे? अच्छा, ये मेरी याददाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो पेशावर के जलसे में आपने देख लिया कि इनका बयानिया मुस्तरद हुआ, जो ये चाह रहे थे वो ना दिखा सके, जो जिस तरह का इन्होंने गठजोड़ करके एक सर जोड़ के बयानिया प्लान किया था, वो अवाम में बिका नहीं और मायूसी हुई। और नून लीग और पीडीएमए के अंदर से ये खींचातानी चल रही है कि वो एक दूसरे पे उसकी नाकामी को फेंक रहे हैं कि फलां की वजह से ये नाकाम हुआ, एएनपी बंदे नहीं लाई, पीपल्स पार्टी के कहने को बाहर नहीं आया, नून लीग के लोग जो हैं वो उस तरह उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। तो ये एक दूसरे के कंधे पे रखने वाले जो बंदूक रख के हवाई फायरिंग कर रहे थे, वो पेशावर में उनकी नाकामी सामने आई। अब अगला मुल्तान का पड़ाव, ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमें तो जो इर्द गिर्द हमारी तरबियत हुई, हमें ये बताया गया और हमने जो सुना और जो देखा, उसमें यही देखा कि जब फैमिली में कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसकी तदफीन होती है तो हमारे यहाँ सोग होता है और उसके बाद उसका पुरसा होता है और सियासत और तमाम किस्म की जो सरगर्मियाँ उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो ये कैसा रिश्ता है कि मैयत घर में पड़ी हो, और मैयत से ज़्यादा क्योंकि मेरे ज़राए से 100% कन्फर्म्ड खबर है कि जिस वक्त दादी मोहतरमा के इंतकाल की खबर मरियम बीबी को इससे पहले मिल चुकी थी कि वो इंतकाल फरमा गई हैं, उसके बावजूद उन्होंने सियासी शोहरत के लिए वो जलसे में जाके तो पॉपुलैरिटी लेने के लिए वो ऐलान किया, जबकि उनको पहले पता था कि उनकी फतीदगी हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है। अब जब घर में मैयत उनकी आ चुकी होगी, उनको शौक है अपने सियासी नशे को पूरा करने का और सियासी दुकानदारी लगाने का। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप ज़रूर आएँ जलसे में, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि उसके बाद जो जलसे के अंदर आए कोरोना फैलाने वाले वो तमाम स्किड मिसाइल आपके साथ आएंगे और वो जिस गली मोहल्ले में जाके वो स्किड मिसाइल चलने हैं और वो कोरोना ने रेप्लिकेट होना है, क्योंकि अगले 10 दिन कोरोना की लहर इंतहाई ख़तरनाक है। इस लहर का फैलाव पाकिस्तान भर में पंजे गाड़ने जा रहा है और इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ SOPs पे अमल और हिफाजती तदाबीर हैं। जो हमारे आपकी तरफ से सवाल था कि क्या इकदाम होंगे, इकदाम जो है वो कानून की हुक्मरानी होगी और आईनी हाथों से कानून का जो रास्ते में आएगा उससे निपटा भी जाएगा। कानून के रास्ते में आने वालों का जो शिकंजा है वो
तोक बांध के गले में टाइट होगा। और जो आपका सवाल था और आपका कि वजीर आज़म की तरफ से ये कोई खुसूसी मैसेज दिया गया है, वजीर आज़म का काम सिर्फ कानून को ताकतवर बनाना है और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, और जो कानून को पमाल करें उनको कानूनी तरीके से इलाज मुआवजा करना है। तो डॉक्टर भी यहाँ हैं आपके सामने, और बाकी भी हमारे बहुत सारे ज़हनी मरीजों का इलाज भी जारी है, और जो उस वक्त कानून को हाथ में लेंगे उनका कानून जो है बेहतरीन इलाज करेगा। और लास्ट जो है कि और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, तो उन गिरफ्तारियों का डिपेंड करता है कि वो अमल क्या करते हैं। अगर स्याहकारी नहीं होगी तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी, स्याहकारी होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। मेरा हाल है पांच सवाल पूरे हो गए हैं। हुकूमत जो है नवाज शरीफ के खून की प्यासी है, तो वाकई ऐसा उनके खून की प्यासी है? वो प्यास खून की, एक तरफ तो उनका बयानिया जो है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ से खौफजदा होकर उनको बाहर भेजा, एक तरफ वो ये कह रही हैं, तो प्यास तो हमारी तब बुझती जब वो पाकिस्तान में तशरीफ रखते। तो ये खुद ही उनके अपने बयानिए में तजाद है। वो असल में सरेआम जो उनकी करप्शन मंजर आम पे आई है वो बुखलाहट का शिकार है, और बुखलाहट में वो मिस फायर कर रही हैं, उनको टारगेट समझ में नहीं आ रहा, और टारगेट जब सामने ना हो तो फिर आप हवाई फायरिंग करते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट उनकी हवाई फायरिंग है जो टारगेट पे नहीं चल रही। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाजे के अंदर कोई अपना वफद जो है वो शिरकत करेगा, या अफसोस के लिए सीएम साहब की तरफ से पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई वफद जाती उमरा जाएगा? ये अभी इसका फैसला कोई नहीं हुआ, और हालात को देख के सूरत हाल का जायजा लेके उसके बाद देखेंगे कि पार्टी की सतह पे क्या फैसला होता है। अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पहले कैप्टन पहले कैप्टन सफदर और अब बिलावल कोरोना का शिकार हो चुके हैं। घर के प्रोग्राम में तो कहते हैं कि कोरोना का सर्टिफिकेट लेके आए, जलसों में लोगों को दावत दी जा रही है। मरियम बीबी कहती हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा है आप जलसे में जाएं, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान ना आए। क्या पॉलिसी है? ये खुला तजाद है, और खुला तजाद आपको पता है कि हमारे यहाँ तो रवायात ये हैं कि बड़ा बेटा माँ को कब्र में उतारा करता है। और ये भी आपने दुनिया के अंदर एक नई और अनोखी मिसाल देखी कि पोते दादी को पार्सल कर रहे हैं। ये हमारे लिए दिल खराश वाक़या है जो हमारी इंसानी और इस्लामी रवायात के और हमारी समाजी रवायात के बरखिलाफ है। थैंक यू जी बेटे। लास्ट जी 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 जी। ये बताइए कि हम आगे से ये देखते आए कि जितने भी करप्ट हमारे सियासतदान, क्योंकि किसी से लेके नवाज शरीफ और जितनी गवर्नमेंट आती रही है, मुस्तकिल हम बचपन से अब तक यही देखते आ रहे हैं, बदल रहे जा रहे हैं, और एंड यही हमने देखा है कि वो करप्ट जितने भी सियासतदान है वो जाके बैरूनी मुल्क जाके और अपने आप को सेव कर रहे हैं। सवाल क्या कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं बना या कोई तब्दीली ऐसी नहीं आ सकती कि इन लोगों को वहाँ जाने से रोका जाए और उन्हें यहाँ पे बुलाया जाए? तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत आप दें पीटीआई को, कानून साजी हो और इनके लिए पाकिस्तान लाने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाए। बहुत शुक्रिया।